Good morning, students. Welcome back. So, in previous class, we have studied about resistance, resistivity, combination of resistors, and some numericals based on circuit equation. Today, we are going to deal on the topic battery. But before that, let us introduce some numericals based on the combination of battery and resistance. Suppose we have to apply Ohm's law, and by applying Ohm's law we have to find the potential A and B. Let this cell of 4 volt (0.5 ampere of current is flowing), 2 ohm resistance. We have to find VA minus VB. Pause your video and let us find. What we can do? We will start from VA. While going from higher to lower, this is minus 4. As current will flow through resistance from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. So there is a potential drop. 0.5 into 2, that is minus 1, equal to VB. So VA minus VB equals 5 volt. Now what will happen if we use 2 or more cells? Combination of cells. Let us take an example. Point A, 2 ohm, 1 cell, again resistance, 1 cell, again 1 resistance, 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 2 ampere current is flowing. Let this cell be 2 volt, 1 volt, 1 volt. Point B. We have to find VA minus VB. Let us find. We will start from VA. Now we move further. In 2 ohm resistance, there is a potential drop as current will flow from higher potential to lower potential. So there is a potential drop. So there will be a negative sign, minus 4. In cell, again there is a potential drop, minus 2 volt. Again in this resistance, potential drop, minus 2 volt, minus 1 volt, minus 6 volt, and plus 1 volt. In the last cell, we are going from negative potential to positive, that is from lower to higher. So there is a potential rise, equal to, this will be equals B. So VA minus VB equals to 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 6 15 14 volt. So this gives the potential difference between 2 points in a section of the circuit, and in that section we have
two or more cells with two or more resistance. So what we noticed here is this 2 ohm, 1 ohm or 3 ohm, are they in series or not? Yes, they are in series. So instead of 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm separately, we can combine it and we can write it as 3 plus 2 plus 1, 6 ohm. This is point A. Again, in the case of cell or battery, here we see that 2 volt and 1 volt will support the flow of current, but this 1 volt will oppose the flow of current. So the net EMF or net cell we can use 2 volt. Current is flowing is 2 ampere. Now if we have to find again potential difference between A and B, we will use the same formula VA. When current will flow through 6 ohm, there is a potential drop. We will write as minus 12 again through this cell, minus 2 equals VB, and so VA minus VB equals 14 वोल्ट. तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? किसी भी सर्किट के किसी सेक्शन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स लगे हुए हैं तो उसे कंबाइन करके सिंगल सेल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन का तरीका है कि जो सेल सपोर्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को उसे ऐड करते जाएं. दैट इज़ जो सेल के कारण डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है उसके सारे पोटेंशियल को हम लोग ऐड करेंगे और जिसके कारण अपोजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ग्रेटर सेल है उसी के अलोंग हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड्स रखेंगे. अब सपोज 2 + 1 3 वोल्ट, ऑब्वियसली ये 3 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है करंट को, ये 1 वोल्ट अपोज कर रहा है. क्योंकि 3 वोल्ट वाला सेल बड़ा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड 3 वोल्ट वाले सेल के जैसा ही यहाँ पे रखा गया. अगर ये 1 वोल्ट बड़ा हो जाता तो 1 वोल्ट के जैसा यहाँ पे रखा जाता. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोग सीरीज सेल्स को एक साथ किसी भी सेक्शन में एक साथ हम लोग जोड़ सकते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन. इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं. सपोज अगर हमारे पास 2 सेल है, एक 6 वोल्ट और एक 2 वोल्ट. ये दोनों सेल ऑब्वियसली करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है. एक सेल करंट को लेफ्ट की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, लेफ्ट की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है, और 2 वोल्ट वाला सेल राइट की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है करंट को. ऑब्वियसली इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो वी कैन राइट ए सेल ऑफ पोटेंशियल 4 वोल्ट. और इस 4 वोल्ट के कारण जो करंट का डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो बड़े वाले सेल के कारण हो रहा था, दैट इज 6 वोल्ट के कारण हो रहा था. तो इलेक्ट्रोड्स को उसी तरह से रखा जा रहा है कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अगर हम लोग इस तरह से ले लें 3 वोल्ट 2 वोल्ट, दोनों सेल सपोर्ट कर रहा है, तो जो नया सेल आएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट. तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को किस तरह से सेल्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक सर्किट है
इस तरह का सर्किट। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका वोल्टेज रख दें 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम। अब अगर हम इस सेक्शन के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करें, तो सर्किट का एक ऐसा सेक्शन जिसमें 2 सेल लगे हुए हैं, तो इस 2 सेल के बदले में हम लोग एक सिंगल सेल बना सकते हैं। और उसी सेक्शन में 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, 3 रेसिस्टर के बदले में सिंगल रेसिस्टर बनाया जा सकता है। तो जो हमारा कम्बिनेशन होगा सेल का 8 वोल्ट, देख सकते हैं ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराने का कोशिश कर रहा है। और ये 2 वोल्ट को अपोजिट डायरेक्शन कर देता है। 2 वोल्ट करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराने का कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों वोल्ट एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अगर इस केस में हम लोग देखें, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। इस केस में पॉजिटिव एक तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो जो अपोज कर रहा है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा सेल का, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करके इलेक्ट्रोड्स का डायरेक्शन कैसा रखेंगे, तो बड़े वाले सेल के कारण करंट का जो डायरेक्शन होगा, नए सेल के कारण करंट का डायरेक्शन वैसा ही होना चाहिए। तो हमारे पास जो नया सेल बनेगा वो इस तरह का बनेगा। 8 - 2 दैट इज 6 वोल्ट। 3 + 1 4 + 2 6 ओम। एक 6 ओम रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे हम लोग। तो इस सेक्शन को इक्विवेलेंटली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा सर्किट ऑब्वियसली छोटा हो गया, और इसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके सर्किट में जो पूछा जा रहा है, करंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग आवर मेन टॉपिक, बैटरी। तो एक न्यू टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जब बैटरी आती है तो एक न्यू टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है EMF। फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली वर्क डन है। आप EMF को इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये एग्जांपल आप लोग देखे भी होंगे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पाइप है, यहाँ पर एक बंदा है बॉल लिए हुए, और ये पर्सन बॉल को ऊपर थ्रो करता है। तो ये बॉल यहाँ पहुंचकर वापस से बाय ओन ये नीचे आ जाता है। ये फिर से बॉल को लेता है और ऊपर थ्रो कर देता है। तो बेसिकली ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इस बॉल में एनर्जी दे रहा है कि वो बॉल यहाँ तक पहुँच सके। तो बेसिकली ये आदमी क्या दे रहा है, एनर्जी। दिस पर्सन गिव्स एनर्जी। ये बंदा ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। एनर्जी कैसे देगा, वर्क करेगा। ये इस बॉल पर वर्क कर रहा है और उसके कारण बॉल ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ठीक उसी तरह से अगर किसी सर्किट में एक सेल लगा हुआ रहता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा। तो जब वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, तो इसके पास एनर्जी 0 हो गई। अब जब इसके पास एनर्जी 0 हो गया, तो बैटरी उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बैटरी क्या काम करेगी,
बैटरी इस पॉजिटिव टर्मिनल से, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से खींचकर नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके जाएगी। अब सपोज करो कि इस चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम, तो बैटरी को जितना वर्क करना पड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में, उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। एक कूलम चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो इसे लिखा जा सकता है ईएमएफ इक्वल्स W/Q। मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज की जगह पर Q चार्ज को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है E से, एक अलग सिंबल दिया गया। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यूनिट वोल्ट जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो यहाँ पर 2 टर्म आ रही, एक ईएमएफ और एक पोटेंशियल डिफरेंस। So there is a difference between EMF and potential difference. Now this is your homework. You have to write difference between EMF and potential difference. We will discuss some points. EMF and potential difference. कब हम लोग EMF यूज़ करते हैं और कब हम लोग potential difference यूज़ करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर वर्क डन किया जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो 2 इलेक्ट्रोड्स, सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो यहाँ पर सेल के इलेक्ट्रोड्स का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ हम लोग तभी बोल सकते हैं जब इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। The potential difference between the 2 electrodes of the cell, positive terminal and negative terminal of the cell, when no current is drawn from the cell, जब कोई भी करंट हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे? तो ऑब्वियसली जब हम लोग करंट ड्रॉ करेंगे तब दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। इस केस में फिगर थोड़ा देख लेता है। सपोज ये एक स्विच है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, चूंकि स्विच ऑफ है तो इस दोनों के पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देंगे ईएमएफ। स्विच जब ऑफ है, अब अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो अब इस दोनों के पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम लोग दूसरा पॉइंट ले लें C एंड D, तो potential difference between point C and D will be equal to the potential difference between point A and B when switch is on. अगर स्विच ऑफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D कितना होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जब करंट ड्रॉ हम लोग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोला जाता है, और जब करंट ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। क्या ये क्लियर हो गई? तो एक डिफरेंस ये हो गया। सेल, रियलिटी में जो सेल होते हैं वो इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। सेल इस तरह से। बेसिकली सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस समय के साथ रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। उसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो वो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है। ईएमएफ इंटरनल
रेसिस्टेंस। अब अगर हम लोग बात करें सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सपोज ये स्विच है, यहाँ पर स्विच को हम ऑन कर दिए, तो स्विच जब ऑन है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। लेट आई करंट इज फ्लोइंग। अब अगर करंट फ्लो होगा तो इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ए बी, इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी बोलेंगे ना कि ई। यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसी के कारण ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होगा और ईएमएफ हमेशा छोटा होगा पोटेंशियल से। क्या ये सही होगा? सोच करके बताइए। ईएमएफ हमेशा छोटा होगा वी से, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग ईएमएफ के बारे में बात करें तो ईएमएफ ई हो गए जब करंट हम लोग का फ्लो नहीं कर रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब अगर करंट फ्लो करेगा यहाँ से तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इस एरिया का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है इस रेसिस्टेंस के कारण। और जब करंट फ्लो करता है तो इस एरिया या इस रीजन के पोटेंशियल को तो वी बोला जाता है। इसका मतलब ई आपका हमेशा बड़ा होगा वी से। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ये दूसरा पॉइंट हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो आर लगा हुआ है, V ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर लिखा जा सकता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R क्या EMF को चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R क्या V को चेंज कर सकता है? यस। तो EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग E R पर डिपेंड नहीं करेगा और V R पर डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। अच्छा, एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं यहां पर E और V। E कब आता है और V कब आता है? जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो E यूज करेंगे या V यूज करेंगे? जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो E यूज करेंगे या V? तो ऑब्वियसली V यूज किया जाएगा। और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सेल के ईएमएफ को हम लोग E ही बोल सकते हैं। इसका मतलब कि ईएमएफ करंट पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करता सर्किट से, बट V करंट पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ और डिफरेंसेस आप लोग खुद से लिखिएगा। ये आपका असाइनमेंट हो गया, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर एक सर्किट लेते हैं, हम लोग एक इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सब टर्म है जो आप लोग को आनी चाहिए। इंटरनल रेसिस्टेंस जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, अगर हम लोग एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इसमें आयंस मिलेंगे हमको, आयंस। ये चार्ज, या अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज, फ्री चार्ज के बारे में बात करें, तो इसका क्या काम होता है? फ्री चार्ज का काम क्या होता है? बेसिकली फ्री चार्ज ट्रांसपोर्टर होता है। ट्रांसपोर्टर किसको ट्रांसपोर्ट करता है? किसको ले जाता है? करंट को ले जाता है। फिर एक टर्म आया बैटरी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैटरी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। इसका काम क्या है? गिव्स एनर्जी।
ये एनर्जी देता है। किसको देगा एनर्जी? ट्रांसपोर्टर को। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर जब चलेगा तो एनर्जी वेस्ट होगा, तो बैटरी विल गिव्स एनर्जी, बैटरी विल प्रोवाइड्स एनर्जी। तो यहाँ पर आयंस होते हैं जो मूव करेंगे, आयंस ही हमारा फ्री चार्ज हो गया जो ट्रांसपोर्टर हो गया करंट के। अब अगर ये मूव करेंगे तो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे वो कौन प्रोड्यूस करे? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे। तो बेसिकली internal resistance is the opposition offered by the electrolyte of the cell, this liquid, by the electrolyte of the cell to the flow of current. Internal resistance is the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of current, is called internal resistance. तो internal resistance नया टर्म, तो नया सिंबल, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट सेम ओम होगा। अब इंटरनल रेसिस्टेंस बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। किस किस फैक्टर्स पे इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? लेट अस सी। अब अगर हम लोग देखें, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के सेपरेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली चार्ज को ग्रेटर पाथ ट्रैवल करना होगा, तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ग्रेटर विल बी द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो एक फैक्टर हो गया सेपरेशन। किसका सेपरेशन? तो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा चार्ज का। अब हम लोग जानते भी हैं कंडक्टर में चार्ज का फ्लो ज़्यादा होता है, इंसुलेटर में कम होता है, क्योंकि कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर द कंडक्टिविटी लेसर विल बी द इंटरनल resistance, electrolyte. Point number 3, इलेक्ट्रोड्स जितने अंदर तक डूबे हुए रहेंगे, अब अगर थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोड्स डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयंस कम ही प्रोड्यूस होंगे, चार्ज कम होंगे तो करंट का फ्लो भी कम होगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं तो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एरिया जो डिप किया हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट में, उस पर डिपेंड करता है। उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, द इंटरनल रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the common area of electrodes dipping in the electrolyte. तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज़्यादा डूबे हुए रहेंगे कंडक्टिविटी और चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे तो करंट भी उतने ज़्यादा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉमन एरिया ऑफ electrodes dipping or dipped in the electrolyte. Point number 4, nature of electrolyte. अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होते हैं कंडक्शन के लिए, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे नेचर ऑफ मटेरियल, कॉपर और सिल्वर दोनों ही कंडक्टर ही हैं, लेकिन सिल्वर बेस्ट कंडक्टर में आता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रो ऑफ द बैटरी। कुछ कुछ टर्म्स आपको बताए गए हैं इसमें, उस टर्म्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ईएमएफ टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस बताया गया। इन रियलिटी में सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विथ इंटरनल रेसिस्टेंस,
अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है वो बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, सर्किट इक्वेशन फ्रेम करेंगे। चार्जिंग के केस में किस तरह का इक्वेशन बनता है, डिस्चार्जिंग के केस में किस तरह से इक्वेशन बनता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।